وہ جو میں نے جملہ کہا تھا نا کہ 1 گھنٹے والی بات، تو اس کے علاوہ میں نے سب کچھ سچ کہا، اس لیے کہ اتنا جھوٹ جو ہے وہ ناظم جلسہ کو کہنا پڑتا ہے۔ بہرحال بہت اچھی گفتگو ناظم نے کی۔ اب میں ایک ایسے شخص کے ساتھ آپ کو ملوانا چاہتا ہوں، آپ سے ملوانا چاہتا ہوں، جس نے اس کے لیے پہلا تعارف تو میں یہ کروانا چاہوں گا کہ وہ اپنی صبح کی اور شام کی چائے میں منڈوں کو کھول کر پیتے ہیں۔ آپ ذرا ذائقہ لیں اس چائے کا۔ اور میرے اس بھائی کا نام محمد اسلم پرویز، میں نے اس کو بہت بچپن سے دیکھا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ سب ایک ساتھ رہے ہیں ایک ہی علاقے کا روڈ پر۔ اسلم نے اپنی دنیا خود بنائی، اپنا جلوہ خود دکھایا، بیساکھی کا کبھی سہارا نہیں دیا، اپنے قلم کو اتنا طاقتور بنایا کہ ہندی اور گجراتی کے ڈرامہ کرنے والے اور کھیلنے والوں نے اسلم کو ہاتھوں ہاتھ دیا۔ اسلم نے بڑا نام کمایا، بہت سے ڈرامے لکھے، کہانیاں بھی لکھی ہوں گی یقیناً۔ اور اسلم کا ایک بڑا اچھا تعارف یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی تحریر میں، اپنے ڈرامے میں کہیں بھی جھوٹ بولتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ ایک بڑا وصف ہے کہ قلم کار اگر اپنے آپ کو کسی جھوٹ سے، کسی تہمت سے بچائے۔ میں ایک جملہ کہہ گیا، وہ تہمت مجھ پہ لگ گئی، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے آج کے مقرر خصوصی محمد اسلم پرویز کو سماعت کریں۔ آپ دیکھیں ان کا انداز گفتگو اور ان کی زبان، ان کا قلم اور کہانیوں سے پرے کے ساتھ ہاشم خان۔ مضمون کا عنوان ہے بمبئی کے اردو افسانے کا منظرنامہ اور کہانیوں سے بنا۔ میرے پاس کوئی کہانی نہیں ہے۔ یہ مکالمہ انور خان کے افسانے کے کردار کا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو، خوابوں سے ڈھکا آسمان کے عنوان سے لکھے افسانے میں انور خان نے ہماری ملاقات 4 ایسے افراد سے کروائی تھی جو اپنے گھروں سے باہر شہر کی سڑک پر رام پوری چاقو کی طرح ہڈیوں میں اتر جانے والی تیز ہوا کے چکر برداشت کرتے الاؤ کے گرد بستر بیٹھے۔ رات سرد اور لمبی تھی، جبکہ الاؤ گم رکھنے کے تمام وسائل ختم ہو چکے تھے اور کہانیاں۔ کبھی وہاں ایک پردیسی کا گزر ہوتا ہے، ٹھنڈے الاؤ کے گرد بیٹھے ہوئے لوگ پردیسی سے کہانی سنانے کی فرمائش کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے، میرے پاس کوئی کہانی نہیں ہے۔ بظاہر یہ بات معمولی معلوم پڑتی ہے، لیکن غور کریں تو کہانی سے محروم معاشرے کا تصور انسانی تاریخ کا سب سے المناک سانحہ ہے اور ہولناک۔ انور خان کے اس پردیسی کا فکرہ میرے خیال میں اردو افسانے کی موجودہ صورتحال بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ انور خان کا انتقال 2002 میں ہوا اور ان کے گزرنے کے بعد بمبئی کے افسانوی منظرنامے کا بمبئی کے اردو افسانے پر جو نسل ابھری، ان کی بھری ہوئی زنبیل میں کوئی کہانی ایسی نہ تھی جو سرد اور لمبی رات کاٹنے کے کام آئے۔ چل جائے کہ پانی پر تیرتے شہر کے چاروں طرف افسانوں کی فصلیں لہلا رہی ہیں۔ افسانہ نگار مسلسل لکھ رہے ہیں، نہ صرف لکھ رہے ہیں، چھاتی ٹھوک کر مجموعے بھی شائع کر رہے ہیں۔
लेकिन अलमिया बल्कि तरबियत ये है कि ये कहानियाँ ना अलाव तकने के वसीला बन रही हैं, ना ही सर्द रात काटने का है। सब जानते हैं आज़ादी से पहले बम्बई के आसमान तले कभी बंटो, कृष्णचंद्र बेदी, इस्मत, ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे लिखने वालों की कहकशां चमका रही। तो आज़ादी के बाद पुरंदर हैदर, सुरेंद्र प्रकाश, सलामी रज़ाक, अनवर खान, वाजिदा तबस्सुम, अनवर कमर, साजिद रशीद, अली इमाम नकवी, मुश्ताक मोमिन, सागिर सरदी, महफिज हैदर, फिरोजा खान, बिनता मसूद, महमूद अयूबी, मीर नाग जैसे लिखने वालों ने अपनी कहानियों की कंदील से फिक्शन के आसमान को रोशन कर रखा। मगर अब बम्बई के आसमान पर अंधेरा है कि वक्त का वो टुकड़ा कौवा लेकर उड़ चुका है, मगर आसमान उसके परों से ढका हुआ है और उसकी काय से कटा हुआ है। ऐसे में कथापुरुष सुरेंद्र प्रकाश और उनकी इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट बहुत याद आती है। अपने से जूनियर अफसाना निगारों की कमजोर, मरियल और औसत दर्जे की तहरीरों से मरहूम का जब भी सामना होता तो अपनी फुश्ता मगर कांटों वाली जुबान में कहते, सचमुच उर्दू अफसाने पर बुरा वक्त आन पड़ा। लेकिन उस वक्त उन्हें बुरे वक्त की हकीकत का कहाँ पता था। वो तब नहीं जानते थे कि इस सिंध को अपनी पस्तियों की मजीद बुलंदियां देखना अभी बाकी है। नई सदी में अफसाना निगारों की जो खेल सामने आई है, उनके तहरीर करदा अफसानों के तनाजुर में 1980 से 2000 के दौरान लिखी गई कहानियों को आज पढ़ता हूँ तो वो मुझे सचमुच ज़रा जाफरी मालूम होने लगती हैं। कह सकते हैं अगलों ने पिछलों की वक्त बढ़ा। सितम ये नहीं कि 2000 के बाद बम्बई के मासी अफसाना निगारों के अफसाने हमें किसी मानी खेज तजुर्बे से रूबरू नहीं कराते। सितम ज़रीफ़ी यह है कि उनके अफसाने हमें मुसलसल एहसास कराते रहते हैं कि भाई बसंत का मौसम सदी के साथ गुजर चुका है और गोया गाड़ी गुजर चुकी है, बस पटरी चमक रही है। कहते हैं हर 10-12 साल बाद सोचने और सोच का इजहार करने वालों की एक नई खेप नमूदार होती है, मगर बम्बई के ज्यादातर अफसाना निगार 2 दहाइयों से एक ही जगह पर ठहरे हुए मालूम होते हैं। अगर ऑप्टिमिस्टिक हो जाऊं तो कहूंगा कि ठहरे हुए नहीं तो एक जगह पर कदम ताल करते दिखाई देते हैं। असल मसला इन होशमंद फनकारों का यह है कि उनके लिए पेशरो रवायत ना कभी बड़ा सवाल बनी, ना ही पेशरो अफसाना निगार बड़ा चैलेंज। शायद इसीलिए उन्होंने कभी पेशरों से अपना पॉइंट ऑफ डिपार्चर दरियाफ्त ही नहीं किया। तो दोस्तों, ऐसे मौसम में हाशिम खान एक नए परदेसी की हैसियत से बम्बई के अफसाने के उफक पर नमूदार होना किसी खूबसूरत और मानीखेज अफसाने से कम नहीं। लेकिन है इससे पहले कि हम खुली बाहों से हाशिम खान का खैर मकदम करें, मुझे जरा कैमरे को जूम कर लेने दीजिए। हाँ, मैं देख रहा हूँ रात पहले से ज्यादा सर्द और लंबी है। ठंडे अलाव के गिर्द बैठे हुए अफराद कहानियां सुना रहे हैं। नहीं, कहानियां सुनाने का स्वांग रचा रहे हैं। दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कहानियों की आड़ में तंबूला खेल रहे हैं। ध्यान रहे, बलराज मेमना हमें पहले ही बता चुके हैं, तंबूला बिना रिस्क के मुनाफा बख्श रिलीफ लाइट रिफ्रेशमेंट को कहते हैं। अफसाने मंजरनामे में कहानियों से परे की आहट और आमद बताती है कि हमारे दरमियान एक ऐसा जोश और बाशऊर फनकार अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रहा है जिसकी झोली में कहानियां ही नहीं बल्कि कहानी कहने और जिंदगी को देखने, समझने, परखने और भुगतने के मुख्तलिफ और मुतन्नफ़ ज़ाविये और रवैये भी हैं। सब जानते हैं अपने पेशरों और नासरीन के मुकाबले में हाशिम खान ने कम अफसाने लिखे और उससे भी कम शाया कराए। सरहद के उस तरफ रसाइल में वो बड़े एहतशाम से छपते रहे हैं, लेकिन यहाँ के फिक्शन के कारीन से उनकी मुलाकात कम ही रही। लेकिन इसके बावजूद लोग बाग उनके नाम से बिल्कुल अनजान नहीं है, तो उसकी वजह वो तख्लीकी और फनी किताब का हर अफसाना अपने तज़किये के लिए खुसूसी मुताले का मुतालबा और तकाजा करता है। असल कहानी और कहानी के असर उसके मरकज में ढूंढने के बजाय उसके मुसाफात में तलाशने और तराशने के इसरार में हम सहाफ़ी हाशिम खान में से अफसाना निगार हाशिम खान को बरामद होता हुआ देख सकते हैं। फिरदौस हसीन
कश्मीर के मौजू और मसले पर लिखे 20 अफसानों से इन मानों में मुख्तलिफ है कि इसमें माजरा, मंजर और किरदार साफ और शफाफ बल्कि वाशफाफ तरीके से पेश हुए और हर चीज़ अपनी तमाम जुज़ियात और तफसीलात के साथ आंखों के सामने फिट जाती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि अफसाना पेश किए गए मंजर, किरदार या माजरा में नहीं, पस माजरा में सांस ले रहा है। ज़ेर मुतल्ला अफसाने में जब रावी कश्मीर के हालात बयान करते हुए कहता है तो ये एक शोरिश ज़दा रियासत का मशहूर सियासी मुकाम था, अनकोट। तो अचानक एक किरदार अफसाने की चौथी दीवार को तोड़कर रावी से मुखातिब होता है। कोट, क्या कहा तुमने था? रावी मुझे उस खाब पर शदीद एतराज है, सब कुछ हाल में चलना चाहिए, जगह अभी जिंदा है, उसकी रूह हमारी रूह से गर्चा कहीं ज्यादा बुरी है मगर तवाना और जिंदगी से लबरेज है। याद रहे जगह नहीं मरती, हमारे मर जाने के बाद भी जिंदा रहेगी और इस फसाने के खत्म हो जाने के बाद। तुम्हारी इस कहानी में मेरी मुदाखलत कुछ गैर तकनीकी है, उम्मीद है कि इस दख्ल दरमाकुलात को बर्दाश्त करेंगे। मैं अपना एहतिजाज दर्ज करवा चुकी हूँ, अब तुम शौक से अपनी कहानी जारी रख सकते हो। हाँ, तो क्या कह रहे थे? अहम बात यहाँ यह है कि अफसानी फ्रेम को तोड़कर दखल दर माफूलात करने वाला किरदार कोई नॉन एंटिटी नहीं, खुद अफसाने का मरकजी और मनवरी किरदार कुदसी है। खालिद जावेद के किसी अफसाने में किरदार लिखता है तो अल्फाज और हुरूफ हाकिम की अतात करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन यहाँ खुद किरदार ही मुसन्निफ का हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। हर इनकार को नोट करने के बाद अफसाने का रावी कहानी जारी रखता है, लेकिन कुर्सिया तो छोटी सदा रियासत के मशहूर सियासी मुकाम के धुंधले बादलों में खो जाता है, जिसका एहसास कारी और रावी दोनों को अफसाने के इख्तिताम पर होता है। अनकहे, अनसुने, अनदेखे और अनछुए नुक्तों और मंतकों को मस करते हुए फिरदौस हज़ी अपने इख्तिताम में एक सवालिया निशान नक्श करता है, जिसके अंदरून एक बड़ा सवाल किसी डायनासोर की मानी मुंह खोले खड़ा है। कुर्सी की तरह सरोजनी यह छोटी छोटी नेकियां की तस्लीम और नाज़नीन कहानी से परे की वो बेनाम औरत जिसे अफसाने का रावी बेखबर खलल इसको ख्याल और कायनात की तकमील का इख्तियार कहकर खातिर करता है। हम तो इस जीने के हाथों की अपनी शर्तों पर जीने वाली कंकर बाप की मिडिल क्लास बेटी है नहीं, या फिर जनाजा अपनुकश्ता जिंदगी का की रजनी राशिद खान के अफसानों में वजूद पाने वाली दूसरी औरतें, लड़कियां भी आटे की आपाएं नहीं। ये खुदा से लेकर हामिद तक, फर्द से लेकर मास्टरी निज़ाम तक अपने वजूद की मानवियत पर थरथराती जुबान में ये सवाल करने का हौसला करती और रखती हैं कि मैं क्या हूँ और क्यों। सवाल अहम है और सवाल पर हामिद से लेकर खुदा तक और फर्द से लेकर माशरती निज़ाम तक खामोश। इन सवालों के रिफ्लेक्टर में हम इन नस्वानी किरदारों के पेचीदा ज़हनी तजुर्बात, दाखिली नफ्सियात, कैफियत, एहसासात और जज्बात को मुनक़िस होते हुए देख सकते हैं। ये किरदार इतने जिंदा, इतने नुमायां और इतने जीते जागते हैं कि अजनबियत का कोई एहसास कारी को नहीं होता। किसी भी इज़्म के बजाय राह रास्त जिंदगी पर यकीन रखने वाली जनाजा खून गश्ता जिंदगी का की रजनी कौल खुद तो बेकैफ हाल और तारीख के मुस्तक़बिल में ज़िस्त कर रही है, लेकिन दूसरों के लिए वो कोशिश से ज़्यादा मौजूद नहीं रखती। उसका कसूर या गुनाह यह है कि उसने एक सीधे साधे मुसलमान रास्त सियासी मुफस्सिर और इंसानी हुकूक के फाल कारकुन से शादी की। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली एक उर्दू पंडित की लड़की का इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली किसी तंजीम के फाल रुकन से शादी करना और उस पर उसका मुसलमान होना, ये दोनों वजह इस्माइल की मौत खरीदने के लिए काफ़ी थी। शौहर के बाद बेटे मंसूर की मौत ने रजनी कौल की जिंदगी को बेरहम और शफ़ाक़ तन्हाई में मुब्तला कर दिया। जिंदगी में उमड़ कर आने वाली इस नोई तन्हाई और जज्बाती को रूहानी बेसरो सामानी का एहसास रजनी कौल के अंदर जिस मतन को तश्कील करता है, हाशिम खान ने उसे जनाजा खून गश्ता जिंदगी का के उन्वान से तहरीर किया।
खुद कलामी के अस्तित्व में लिखा गया कि अफसाना कहीं कहीं डाउट थिंकिंग का रूप धारण कर लेता है। अफसाने में प्लॉट को ना रवायती अंदाज में पेश करना मुमकिन था ना जरूरी। खुद कलामी के बाद इससे एब्स्ट्रैक्ट नोयत के हैं, लेकिन इनमें भी किरदारों का इर्तिका देखा जा सकता है। प्लॉट की तामीर मादूमी सही मगर अपनी मौजूदगी का एहसास कराती। इस खुद कलामी में कहीं रजनी और की जात दुनिया होती है तो कहीं सियासी और समाजी निज़ाम का कारण सीधू हो जाता है। फिरका परस्ती, दहशतगर्दी और नस्ली व मजहबी तफादुल के वाक़यात हदफ सिर्फ रजनी का शौहर और उसका जवान बेटा ही नहीं, जाहिर है वो खुद भी है। शौहर और बेटा दोनों ही रजनी से बहुत दूर जा चुके हैं और वो उन्हें इस तौर याद कर रही है कि अफसाने के सफ़े पर हम उसकी जज्बाती गर्दिशों को महसूस कर सकते हैं। जिस महारत पुख्तगी व दराकी से हाशिम ने इनको अपने फन में बढ़ता है, इसका एक सबूत इख्तिताम में खुद कलामी के तर्ज इजहार को तर्क करके ज़मानी व मकानी जहत अता करने वाले ठोस हकीकत पसंदाना अस्लूब आजमाने में भी मौजूद है। खुद कलामी के अस्लूब में लिखे गए अफसाने का इख्तितामी हिस्सा मुलाहिजा। तो सुबह इंस्पेक्टर भोसले फोन पर किसी को गालियां दे रहा था। केसी असना में डिप्टी पुलिस कमिश्नर राम कदम की गाड़ी इहाते में दाखिल। राम कदम भोसले वो लेडी राइटर याद है तुमको? कौन सर? वो रजनी को जिसके पीछे अपने एसएसपी साहब पागल थे और उसने उनको छोड़कर एक मोमेडियन लौंडे से शादी कर ली थी। शट अप। लाश पोस्टमार्टम के लिए लेकर आ रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके नजर आतिश कर दें। यह इख्तिताम एक तरफ अफसाने की ज़मानी व मकानी जहत को दर्ज करता है तो दूसरी तरफ अफसाने को बिल्कुल एक नई और एक ऐसी सतह पर ले आता है जहाँ रावी और कारी के दरमियान खामोश मुखालफे की सूरत पैदा हो जाती है। यहाँ यह बताना भी दिलचस्पी का सबब बन सकता है कि अफसाने के अगर हम डीप स्ट्रक्चर में उतरे तो एहसास होता है कि रजनी कौर की कलामी में एक पैटर्न खुद ब खुद वजह होता चला गया है जो उसकी तहमत सदा काबूसी और आसिफ यादों को परत दर परत उमेड़ना चाहता है। बहसियत अफसाना निगार हाशिम खान का कमाल ये है कि खुद कलामी के तानो बानों में सियासी और समाजी मंजरनामे को इस तरह जज्ब किया है कि सियासत का मखलू और मखदूमा चेहरा अपनी तमाम ब्रूटलिटी के साथ तशद्दुद हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद अफसाना इंसानी रिश्तों और राब्तों की कहानी बना रहता है। मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ आखिरी से। आशिफ खान के अफसानों और अफसाना निगारी का एक पहलू उनकी जुबान, जो उनकी ताकत भी है और उनकी कमजोरी भी। इसमें शक नहीं कि आशिफ खान की खल्लाकाना और शायराना नस्ल कारी के दिलो दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। सहाफती तजुर्बे ने उनके अस्लूब को जो धार दी है वो उनकी अफसाना निगारी में बड़े काम है। जुबान के बर्ताव में आशिफ खान का अप्रोच रोमांटिक है और जुमले के जमाल को वो खूब पहचानते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि अफसाने में शेरी जुबान का इस्तेमाल कितना खतरनाक होता है, हो सकता है। बाज़ों के नजदीक तो ये सांप को दुम से पकड़ने के मुतरादिफ है। आशिफ खान ने भी इस जहरीले सांप को दुम से पकड़ने की कोशिश अपने हर अफसाने में की है और इस कोशिश में कहानियों से परे के खालिक और उसकी तख्लीक को कब, कहाँ, कैसे और किस अंदाज में ढसा है, इसकी तफसील किसी और मौके के लिए उठा रखता हूँ। सरदर सिर्फ इतना कहूँगा कि अफसाने अपने अस्लूब और बर्ताव के एतबार से मुनफरिद हैं। इनमें हकीकत की तरफ एक खालिस असरी हिस्सियत और नीम फलसफाना शऊर की गहराई कमाल फन के साथ मौजूद है। तर्ज बयान और पैराए इजहार में प्लॉट की तरतीब, किरदार और किरदार की जुबान को तो कोई खास अहमियत दिए बगैर मुख्तलिफ कैफियत को फनी रब्त के साथ सफर के तौर पर हाशिम खान मुंतकिल करते चले आ रहे हैं। अपने अफसाने सरोजनी में हाशिम खान ने लिखा है तो वो यूँ बैठी थी जैसे तगाचे में बड़ी मिट्टी उजागर के इंतजार में सूख रही है उनको। हाशिम खान का कमाल यह है कि अपने तबारे की मिट्टी उन्होंने सूखने नहीं दिया और कहानियों से परे में मुख्तलिफ तर्ज के कितने ही गुज़े बड़ी आसानी और फरामानी से लफ्ज़ों के पैकर में वो ढलते चले गए। अपने असलियाती अमल में वो जज्बों को सोतो रंग गैर मरे मज़ाहिर को ठोस नोयतों और बेनाम ख्वाहिश को तस्सीम की सूरत में
देखते बरतते हैं। इसीलिए कहानियों से परे किरण के दौरान हम देखते हैं जज्बों की रोशनाई से शबनमी न होने के बाद सूख सूख कर कमजोर और रूठ रूठ कर सरकश होने वाले अल्फाज हैं। पापा जंजीर होगी, कुदरो घास है, खामोश और मलूल तालाब है, दरो दीवार के सीने से निकलकर आगे की तरफ बढ़ती हुई हुए हैं। हड्डियों में उतरने वाली सर्दी से आतिश बदन मांगने वाले स्वेटर, मफलर और दस्ताने हैं। रात की वसी कब्र में दाखिल होने की तैयारी करता हुआ खुर्शीद है। शिकायत करती रहगुजर हैं और खामोश बयान करते उस्तादगान हैं। हड्डियों को चटकाने वाली बर्फ रात है, तबियत पर बिना गुजरने वाली आंसू की अजियत है। कोल्ड कॉफी के साथ मेज पर बिगड़ते वजूद है। तवानाई बनकर पैरों में लौटती यादों की मोहब्बत की वसीयत और हरमा नसीबी की भूल है। गुनाहों का पसीना है, दर्दों साथ हिमाजन होता है। एक मरे खौफ, एक मुगम तजस्सुस, एक दिलगुदार उदासी है। मुफलिस की बेखैर दोशीज़गी की तरह एक एक करके सूखती हुई शीश की जड़ें हैं। चेहरे पर खौफ और तशवीश की रक्स करती लकीरें हैं। दिलों में नींद तीरे नींद कश की खलिश है। मुकश्ता तमन्नाओं का अंबार है। सुकड़ते हुए कमरे, उठते हुए फर्श और नीचे आती हुई छतें हैं। खुद में जम करने और फिर बिना निकाल लिए हजम कर लेने वाले सफाक शहर हैं। अफियत के अगले हुए आसमान की तरह नजर आने वाली कायनात है। अधेड़ उम्र की उबड़ खबड़ औरत की तरह दूर तक फैला हुआ खेत है। बूढ़े बाप पर तबीज होता मर्ज की नकाब और तेरी पर पैरन है। रात के आंसू है, शुक्रियानों को मुंजमिन करने वाला यासियत का बुखार है। घुट कर एक कैफियत में तब्दील होता वजूद है। कागज की लकीरों में जिंदगी के धागों को एक तार में जोड़ते डायरी के वर्क हैं। इनके लिए तब्दीलियाँ करती हुई हवाएं हैं और बुरी होती याददाश्तें। बर्फ के गिरत के दौरान ताल्लुक तकाबू की ऐसी अनोखी और ओरिजिनल नीयतें और सूरतें खल्क होती चली जाती हैं जो हैरत को इंकशाफ के जज्बे को मुतहरिक करती है और मुंजमिद भी। आशिफ खान ने अपनी सभी कहानियाँ शायराना असलूब में तहरीर की हैं और जैसा कि मैंने कहा या शायद नहीं कहा कि यही शायराना असलूब वो गंगोत्री है जहाँ से अफसाना निगार आशिफ खान की कहानी और नारसाई की गंगा बहती है। यह शेरी अंदाज कहीं मुकालमा की नक्श इख्तियार करता हुआ कहानी की आगोश में चला जाता है तो कहीं अपने तमाम कसाओं और घुमाव भूल कर अफसाना झिलमिलाती तख्ती जुबान की गोद में गंदा गंदा लोरी पर उमकने लगता है। ऐसे लम्हात भी आते हैं जब कलाई एहसास के तय में ड्रामाई जदीदियात कारफरमा दिखाई देती है। तमाम से शायराना मजबूरी कशीदाकारी और नशा पदाजी के कहानियों से भरे अफसाने की नाभी में हमारे बहस की रूहानी माजिस्ना जज्बाती बेसोर सामानियाँ अखलाकी हजमतें हसरतें आरज़ुएं मौजूद हैं। उर्दू अफसाने खास तौर पर मुंबई के उर्दू अफसाने के मौजूदा मंजरनामे में इन अफसानों की इशार को मैं नेक शगुन गर्दानता हूँ। इसलिए नहीं कि मेरी नज़र में यह फनी कमजोरियों से पाक है बल्कि इसलिए कि ये अफसाने तख्लीकी इम्कानात से दूर हैं और तख्लीकी इनराफ की राह रोशन करते हैं। आखिर में असद मोहम्मद खान की बात को दोहराते हुए कहानियों से परे के मुसन्निफ को कहूँगा, लिखना खैर का काम है, लिखते हाज़रीन, अभी हमने मोहम्मद असलम परवेज को सुना और एक बड़ा अच्छा तज़किया बड़े खूबसूरत और मुज़य्यन अल्फाज के साथ ये वक्त है कि हम अपने मेहमानों का एज़ाज़िया करें और उनका इस्तक़बाल करें। मैं सबसे पहले ज़ियाउल्लाह आसर से दरख्वास्त करूँगा कि वो डॉक्टर एहरार आज़मी साहब का इस्तक़बाल करें। इसके बाद मैं अशफाक सिद्दीकी को आवाज़ दूंगा कि अशफाक साहब आएँ और वो अनवर मिर्जा साहब का इस्तक़बाल करें। वैसा अनवर आपका इस्तक़बाल करता है अनवर साहब। सर इधर है कैमरा इधर है, इधर कैमरा इधर है। अशफाक है, कैमरा नहीं देख रहे आप। इसके बाद मैं साबिल्ला साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो
हमारे बरादर मोहतरम एजाज सिंधी साहब का इस्तकबाल करें। एजाज सिंधी साहब का इस्तकबाल हुआ चाहता है। जफर शॉल है, गुलदस्ता है और कोई एक तोहफा है। मैं जफरुल्लाह साहब से जियाउल्लाह साहब हुआ चाहता है। मैं अशफाक सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो शाहिद लतीफ साहब का इस्तकबाल करें। देख करके बोलो। हाँ, लुक यहाँ दीजिए तो। हाँ, हाँ, देख करके सामने देखिए। हाँ, देखिए सामने। इधर सामने। मैं सादुल्लाह से जिया जाए, सब लोग जाए, कई चीजें हैं। सलाम भाई, आपका इस्तकबाल हो रहा है, बहुत शुक्रिया कि आप शरीक महफिल रहे, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा एक बड़ा मुनफरिद अफसाना निगार जो आलमी मंजरनामे पर अपना नाम दर्ज करवा चुका है। देखिए सामने देखिए। लो। बहुत शुक्रिया सर, देखिए सामने। बहुत शुक्रिया सर, सामने देखिए। तमाम से गुजारिश करूंगा और आपसे बेपनाह तालियों की दरख्वास्त करूंगा कि हम अब हाशिम खान का इस्तकबाल करने जा रहे हैं। ये बड़ा अहम और बड़ा अच्छा वक्त होता है। सर सामने। अच्छा, फरहान साहब जल्दी आ जाए भाई, जल्दी आ जाए। कि पूरा खानदान, पूरा उर्दू लिटरेरी फोरम, पूरा कौसा, पूरा उमरा, उर्दू अदब दोस्त और उर्दू के जानने वाले हाशिम खान का इस्तकबाल करते हुए, और मैं अपने कुछ अल्फाज के जरिए हाशिम खान का इस्तकबाल करता हूँ कि हम ऐसी ही कहानियाँ आपसे पढ़ना चाहते हैं जैसे हम। बड़ी नाहक तनासी होगी अगर हम हमारे भाई बाबा, हम बाबा कहते हैं जफरुल्लाह भाई साहब को। बाबा से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे बड़े भाई इरफान जाफरी साहब के नेतृत्व में ये बुलाया, इधर पेश करें। आइए आज के नाज़रीन जलसा जनाब इरफान जाफरी साहब मुनफरद लहजे के गुलजार, मानिंदे बहार शख्सियत, ना बोलते हैं गुलजार बना देते हैं। उन्होंने, लेकिन वो कलम जो अपने साथ, अपने दिलों में, अपने पीछे बड़ी सदाकतें, बड़ी जुर्रत लेके फिरता है, उसका नाम अशर नजमी। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप किताब का इजरा करें और सलाम बिलरज़ाक साहब से, शाहिद साहब से और तमाम मौजूद मेहमान से दरख्वास्त करूंगा कि हाशिम अपनी किताब तो आप उन्होंने उनके, मैं हाशिम खान की पहली किताब
2000 रुपए में खरीदने का ऐलान करता हूँ। और ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, वरना मैं बहुत चुपचाप भी कर लेता इस बात को, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये तहरीक ही हमारे दरमियान से उठे कि हम अपने शहर नासिर खान सिलगुरों ने एक कॉपी 1000 में खरीदने का ऐलान किया है। आप देखते हैं कि ये इजरा हुआ चाहता है हम हाशिम खान की किताब का और उनकी तहरीर का, उनके कलम का बहुत इस्तेमाल करते हैं और उनकी जो एंट्री है दाखिल करते हैं। तो एक लोग एक साथ ले लें। हाकिम भाई के पास एक किताब या कटाऊ एक किताब होनी चाहिए। मुबारक हो, मुबारक। बहुत मुबारक। इस्तकबाल है हाशिम खान की पहली किताब का, और मैं इसी के साथ मुदीर इस बार अशर नजमी को आवाज़ दूंगा कि वो अपने तासुरात जनाब सदर, सबके नाम नहीं होगा, बल्कि ये कहूँगा जो आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं, बल्कि मुमरा के कौसा नहीं, लायक फख्र, लायक सताइश और गज़ब के कुव्वत बर्दाश्त रखने वाले आप सब में, क्योंकि उमूमन ये होता है कि मुशायरे में सामीन को बांधे रखना आसान, लेकिन कुछ और संजीदा इस तरह के प्रोग्राम्स में मजलिस जल्दी पकड़ते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, तब से देख रहा हूँ कि लोग मज़ामीन पढ़ रहे हैं, अच्छे मज़ामीन, अच्छे तासुरात थे, लेकिन आप टिके नहीं। तो ये बड़ी अजीब सी बात जो इरफान जाफरी साहब ने शुरू में कहा तारुफ करते हुए, वो बिल्कुल सच दिखा। वो ये कि पूरे मुंबई में, कम से कम मुंबई का तो कह सकता हूँ, इवन मुंबई यूनिवर्सिटी, जबकि वहाँ पे उलमा होते हैं, फुजला होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि वहाँ भी ऐसे कमाल के शामिल नहीं जो आप, तो इससे थोड़ी हिम्मत करें कि हाशिम खान के फिक्शन, हाशिम खान की कहानी पर और उस हवाले से कुछ ऐसी बात कर जाऊं, कुछ ऐसी उसूली बात कर जाऊं जो फिक्शन के हवाले से अब तक नहीं है, कम से कम यहाँ। देखिए, मामला ये है कि मुमरा से, मीरा रोड से मुमरा आने का सफर इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ कोई रस्मी जगह की तकलीफ होती है, कोई बड़ी बात। रस्मी जगह मुमरा रस्मी होती है। मैं यहाँ इसलिए कि बहुत दिनों बाद नॉवल के शोर में एक ऐसे अफसानवी मजमूए की किलकातियां सुनाई मुझे थी, जो अफसानवी मजमूए भी शायद, लेकिन एक ऐसा अफसानवी मजमूआ जो या तो 60s के बाद 70s 80s में नजर आया था,
अफराद तफरीक हर जगह हर दौर में, तरक्की पसंद तहरीक के दौर में देखा, जदीदों के दौर में भी हमारा तो खैर आई नहीं हमारा, लेकिन वहाँ की बात। लेकिन बहुत दिनों के बाद एक अच्छा कहानी बदल, तो ये मेरे लिए फर्ज हो जाता था कि मैं इस मुमरा में, इस पौसा में बनफ्स नफीस शरीफ हूँ और हाशिम खान को खुशामदीद करूँ। देखिए एक बड़ा मसला शाहिद भाई यहाँ बैठे हैं, शायद वो बोले इस मसले पर जो ज़िम्ना। देखिए लोग अक्सर कहते हैं कि जनाब ये दौर बड़ा 20 माशी परेशान, समाजी पॉलिटिकल इशूज में ज़्यादा खड़े हो चुके हैं पहले के मुकाबले में। अब सभी कहानी पढ़ने का रिवाज, नॉवेल पढ़ने का रिवाज और उसकी बॉडी को अफसानचे की तस्लीम करती दुरुस्त सी बात। लेकिन एक बात बताइए कि पिछले 2 दिहाइयों, इस सदी की 2 दिहाई, गुज़श्ता 2 दिहाई, क्या वजह है कि नॉवेल की इशाअत की तादाद बहुत बढ़ गई? और पहले तो ये था जनाब कि पिछली सदी में शमसुलरहमान फारूकी साहब, आल अहमद सुरूर साहब इस बात के बड़े शाकिर है कि हमारे यहाँ नॉवेल नहीं लिखा जा रहा, हमारे यहाँ अफसाने लिखे जा रहे, नॉवेल नहीं लिखा जा रहा। गुज़श्ता 2 दिहाइयों में इस कमी को पूरी कर अच्छी चीजें, कुछ खराब की गई, कुछ औसत दर्जे की। ये कौन लोग हैं जिन पर रफ्तार जिंदगी में असर नहीं करता? लेकिन फूल भी पब्लिशर, लेकिन पड़ोस का जो हाल है वो आप क्या, उनके यहाँ खानदगी ज्यादा, हमारे यहाँ उनके यहाँ किताबें पढ़ी जाती हैं और खरीद कर पढ़ती हैं, PDF में नहीं। वहाँ अगर ये किताबें धड़ शाये होती हैं और हर पब्लिशर मुनाफा कमा रहा है, तो अगर किताब बिक नहीं रही है तो उसको किसी पागल कुत्ते ने काटा है तो वो किताब छापे, मुनाफा कमा। तो ये मामला ये है कि इतना शोर बढ़ा था जब मुख्तसर अफसाना, जिसको हम शॉर्ट स्टोरीज अंग्रेजी में बोलते हैं या अफसाना मजमुआ बोलते हैं, उसके नीचे थोड़ा सा दबसट है। हाशिम खान का ये मजमुआ, उसका हिसाब है, उसकी तरफ नॉवेल पर सबक, नॉवेल आज भी उर्दू में उतना ही मुकद्दर है। और मैं ये कहूँगा कि हाशिम का जो मजमुआ यकीन जाए ये अफसाने डॉक्यू फिक्शन नहीं, और माफ कीजिएगा शायद कुछ लोग कहें, मैंने बहुत गौर से पढ़ा, कुछ पढ़ते हैं और खासकर उसका पेशरफ तो 10-12 बार ये कहना चाहता है अफसाने निगार की एक नया अफसाने निगार की आमद में। और यकीन मानिए कि मैं इस अफसाने निगार को पहले जानता भी नहीं। हमारा इनका 36 नाम रहा, मुझे लिखेगा हम, हमारी मुलाकात, हमारी जान पहचान आज से तकरीबन 3-4 साल 5 साल पुरानी, 11 साल शहादत। लेकिन सर वो नकाओ करिश्मा, वो लाड, चूंकि मैं वैसे ही हर दिमाग बदनाम ज़माना पूरे हिंदुस्तान में मशहूर, ऐसा बदनाम ज़माना कि दूसरा एक मेरी तरह तो बच्ची कैसे, तो काफी चला हमारे काफी मोहब्बत नामे जाए। फिर उसके बाद मुझे लगा, तभी मैंने जानता था कि ये मदद अफसाने नहीं, अगरचे बाद में शकील ने बताया मुझे कि मोदी का जो मुकालमा निकालते हैं कराची में, उनके यहाँ इनके अफसाने शायद बात तो जब उनका ये मजमुआ है, यकीन जानिए कि ये मजमुआ की वजह कि आज मैं एक आम आदमी से झगड़ा कर सकता हूँ,
फनकार से वास्ता नहीं कर सकता। वो मेरी बराबरी का और ऐसा फनकार, एक ऐसा फनकार जो फन के तमाम असरार और रूह से वो आपको दिलासा नहीं देगा। देखिए एक बात मैं बताऊं कि मैं जब भी कोई किताब पढ़ता हूं तो उसके सरवर से शुरू करता हूं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि कोई भी किताब खास कर अपने सरवर से ऑस्ट्रिया का एक शायर था, आप जानते हैं शायद रील्के, उसने कहा था कि अदबी मतन में कॉमा, सेमीकोलन और फुल स्टॉप की उतनी ही अहमियत रखता है जितना लिटरेरी टेक्स्ट। आप समझिए वो कॉमा की बात कर रहा है, वो सेमीकोलन वो फुल स्टॉप की बात कर रहा है। उन्वान तो बहुत बड़ी, उन्वान से मैं करने शुरू। उन्वान मुझे ऐसा लगा कि एक शख्स कहानियां दिख रहा भी है और उससे परे की बात कर रहा है। अजीब सर की रात चौंकाने के लिए शायद या होगा कहानियों से पढ़े, कहानी लिख भी जाओ पर की भी बात करें। इसके तफसील मुझे उनके पेश गौर से पढ़िएगा। अफसाना पढ़ने से पहले चूंकि ये उन्वान ही बता रहा है आशिक खान तरजीहात, उनके तहफ़्फ़ुज़ात और उनके अपनी नज़रियात को मुस्तहकम करता है जो बाकी अफसानों में नजर आती है। देखिए कहानी तो हर जगह होती है, दास्तानों में होती है, हिकायतों में होती है। मसनवी में हमारे यहाँ मंजूर बहुत अच्छी सिर्फ है जिसमें हमने कहानियाँ मसनवी और भी असराफ है। खुद नविश्त में भी कहानी होती है, ज़्यादा खास नहीं कि खुद नविश्त पढ़ लीजिए क्या से क्या। लेकिन ये कह रहा आदमी कहानियों से ये कैसे? सीधी सी बात ये जनाब कि कहानी जब तक अफसाना निगार के कोई भी कहानी, अब तो खैर शाहिद रशीद बताएंगे हमारे अंग्रेजी जो अखबार है वो स्टोरीज बोलते हैं। स्टोरीज से क्या बता दे, वो अफसाना बोलते हैं, खबर स्टोरी क्या। तो ये आदमी बोल रहा है कहानियों से परे, यानी ये कह रहा है कि जब तक कहानी अफसाना निगार के इंफरादी तजुर्बे की आग में उसकी उस भट्टी में जज्ब नहीं होता, जब उसके शऊर और इदराक का हिस्सा नहीं बनता, उसका बॉडी की तरह तैरता रहता है, तब तक वो कहानी रहती है, फिर उसके बाद वो अफसाना बनता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था बहुत मामूली सी चीज और ये बड़ा मार्के का था कि कहानियों से पहले मुझे उन्वान बहुत अच्छा लगा था। तो कहते हैं किसी ने कहा असली आगे, किसी ने कहा सच, किसी ने कहा मैं ज्यादा बात नहीं करता, दो तीन बात जो उनके शेर को अफसाने पढ़ने की चली कुंजी, जिससे ये तारा पर तारा सच बात, सच का जिद क्या है, झूठ हकीकत की जिद क्या है, फसाना या अफसाना। अब अफसाने का मतलब मुमकिन है कि अफसाना और हकीकत गड़बड़ हो जाए और मलबूबा हो जाए, मुमकिन है, मैं कहता हूँ मुमकिन, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह आप और हम एक आम आदमी अपने सच को देखता है, जैसे कोई वाक़या उससे वो जिस तरह मुतासिर हो, उस सच का इज़हार फनकार दूसरी तरह। फनकार का सच जब वो लिखता है तो उसका मसला समाज नहीं होती, उसका मसला जिंदगी नहीं होती, ये गलतफहमी है। तकलीफ पसंदों में इस जुमले को बहुत खोया। मैं ये कहता हूँ कि अब तख्लीकार का, अफसाना निगार का, शायर का मसला जिंदगी नहीं है, एलानिया कहता हूँ मुमरा। तख्लीकार का मसला इंसान, जिंदगी जैसी भी हो
फन का कतई कोई मसला नहीं। इंसान बहुत पेचीदा चीज है। मीर ने बहुत पहले कह दिया था, याद होगा, मक्सा में जानो गिरता है फलक बरसों, के पर्दे से इंसान। आप कहते हैं जनाब अफसाना पेचीदा हो गया, इंसान इतना पेचीदा है तो अफसाना कैसे पेचीदा है? आपने इंसान के खारिज को देखा। जिस जमाने में फोस्टर लिख रहा था उस वक्त प्लॉट की चुस्ती की बात कर रहा था, कह रहा था फिक्शन की प्लॉट है, लेकिन आप जानते हैं कि आज फिक्शन में किरदार प्लॉट ये सब तामे में नहीं है। अब तो जनाब इशाया खुदनविश्त यहाँ तक के फेसबुक की पोस्ट पर मुश्तमिल कई फिक्शन आ गए। मेरी नजर दो अंग्रेजी में और दो हिंदी में कोई सा फिक्शन कर सकता है, लेकिन उस एक शर्त, वो शर्त है उसका जमालियात, उसकी तकनीक। अभी किसी ने कहा कितनी कहानियां मुझे याद आया कि अंग्रेजी का एक नकाज है, वो कहता है वो कहता है कि दुनिया में कहानियों के 7 जॉनर हैं, सिर्फ 7। अब हजारों साल से या सैकड़ों साल से या 50 साल से ये जो पूरी दुनिया में कहानी जारी है, नॉवल की तरह, अफसाने की तरह, वो या रिवेंज, इस तरह की 7 जॉनर। अब उसमें आप क्या करें तो हर दूसरा आदमी तो एक ही कहानी कह रहा है। तो भैया मामला ये है, इस सारा मामला तकनीक का है। आप कोई से भी कहें, मुझे अगर सलाम है, सलाम नहीं है, इख्तियाराती लिखा, तमसीली लिखा, अलामती लिखा, बयानिया लिखा, बयानबाजी लिखी, बयानिया लोग बयानिया और बयानबाजी दोनों को एक करते सब कुछ नहीं, तो एक फिक्शन एक तरीके से और वही आपकी तकनीक, आपका उस्लूब, आपका जो आपकी जो अदबी शख्सियत है वो दूसरे से मुमताज है। मुझे खुशी है कि हाशिम खान ने इतनी लोग बोलते हैं शख्सियत का इजहार फन, मैं इनकार नहीं, शख्सियत का इजहार नहीं। शख्सियत कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसे फौरन दरियाफ्त कर दिया है, बल्कि शख्सियत का इंतजाम है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मुझे हाशिम के यहाँ हाशिम की शख्सियत दिखाई नहीं दी। मुझे तो वो मुसन्निफ नजर आ रहा है जिसे आप रावी कह सकते हैं, किरदार कह सकते हैं, वो नजर आ रहा है, उसके नीचे उसकी शख्सियत दब देखो। बहुत मुख्तसर ले चुके आपकी कुव्वत बर्दाश्त इसलिए तारीफ की थी कि 2-4 बात काम की। एक जमान की बात है, इस जमान में बड़ी दिलचस्प कुछ नहीं होता। 2 चीज होती है। नेता फाजली का एक दूसरा याद आता है, याद आ जाए, एक आदमी में होते हैं 10-20 साल, वो मिसरा याद आ गया। एक आदमी में होते हैं 10-20 साल। मैं आपको बताऊं सिर्फ आदमी में 10-20 साल के नहीं होते, हर जबान में 10-20 जबानें, सहाफत की जबान, सियासत की जबान, सकाफत की जबान, मेडिकल की अलग जबान। मोटा मोटी तौर पर अगर देखा जाए तो इसको 2 हिस्से में बांट सकते हैं, एक तो इब्लाग की जबान, दूसरा फन की जबान। इब्लाग की जबान थोड़ी सी उजलत पसंद, वो कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करती। यानी अगर मैं इब्लाग की जबान इस्तेमाल कर रहा हूं तो फौरन चाहती है कि मुझे पहचान दिया जाए, मुझे शनाख्त कर दिया जाए, उसको पेचीद की बर्दाश्त नहीं। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स, वो जिस चीज से डरती है इब्लाग की जबान, वो इसका ज्यादा से ज्यादा फन की जबान इस्तेमाल, वो दिखाती कम है, छुपाती है, वो इशारियत, इमाइयत और मावराइयत की साझेदार। और आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सहाफत में भी ये फन की जबान देखते हैं।
ये बड़ी खुशहाली था। लेकिन जब अदब में लाख की जबान आ जाए तो बड़ा बदशगुनी माफ। आखिरी के बस एक बात, और वो ये कि मुझे हाशिम के यहाँ लिखा जाएगा, इब्तिदा है, सफर है, अभी शुरुआत है, लेकिन मैं ये अर्ज करता हूँ कि ठीक है, मुझे कहीं कहीं थोड़ी सी बेचैनी जिसका इजहार भी जरूरी है, हल्की सी बेचैनी जिसका इजहार फोन पे भी किया था, वो ये था कि देखिए ठीक है, फसीह ज़बान की अपनी है, फसीह और सही, लेकिन फसीह और सही ज़बान कोई जामिद शय नहीं, और ना वो ऐसी सनद है जो तख्लीकी अमल के लिए रुकावट का सबब बन जाए। मुझे पता नहीं, हाशिम से ये कहते हुए बड़ी बेसाख्तगी से कह रहा कि आपकी ज़बान 24 कैरेट सोना, लेकिन मेरा आपसे इसरार है कि उसको 22 कैरेट होना, क्योंकि जब तक गिलावट, तांबा या जो दूसरी चीजें होती 24 कैरेट में मिलाया ना जाए तो वो टूट जाता है, कीमत नहीं लगता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कि ये मामूली सी चीज है जो मैं इनसे पूरी दोस्ती के साथ, बल्कि पूरी गुज़िश्ता दुश्मनी के हवाले से भी बोल रहा हूँ कि फिर से झगड़ा हो जाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस शख्स ने पहले ही कहानी और अफसाने का फर्क जान लिया, देखिए इसको बहुत आसान है। आज यहाँ अच्छा अफसाना निगार बैठा है, अगर इस कमी पर काबू पा गया तो कल यहाँ बड़े अफसाने निगार करेगा। और की बात किए जा रहे हैं, उसमें सारे अल्फाज, सारे हरूफ तो बहरहाल हाशिम खान के ही हैं, लेकिन यहाँ एक शख्स ऐसा बैठा हुआ है कि जिसकी पहले लोग बोलते थे कि ग़ज़ाली आँखें हैं, लेकिन अब उस मिसरे को थोड़ा सा तब्दील कर देता हूँ मैं कि जिसकी उंगलियाँ ग़ज़ाली। मैं जावेद ग़ज़ाली की बात कर रहा हूँ कि हम उनका इस्तक़बाल करना चाहते हैं, और मैं ज़िया सर से दरख्वास्त करूँगा कि जावेद आगे आएँ। और ये हमारा बड़ा होनहार सबूत है कौसर उमरा का कि जिसने बेशुमार किताबों को बेपनाह खूबसूरती और बहुत अच्छी सूरत अता की है। जावेद का इस्तक़बाल हो रहा है उर्दू लिटरेरी फोरम की जानिब से। किताब सेटिंग, इसका चेहरा और ये सब जो है वो जावेद के मरहून मिन्नत है। जावेद का इस्तक़बाल है, बहुत शुक्रिया। अब अगर मैंने बिलावटी कह दिया, हाशिम खान आपके तासुरात 2 जुमलों में आप आए, इस्तक़बाल करें हाशिम खान का। और देखें आप उनको, वो कितनी देर आपसे गुफ्तगू करते हैं और आप कितनी देर उनसे गुफ्तगू करवा देते हैं। इस्तक़बाल करें। मौजूद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजार रहे हैं। इस वक्त सालों के हवाले से या किताब के हवाले से जो मैंने कह दिया तो आप मौजूद है, वहाँ से तफसील पढ़े। ताल्लुक से मैं मुझे कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए अब मेरे पास कहने के लिए मुझे कुछ है नहीं। आप जिसके वक्त जो है वो नहीं करना चाहते। मैं आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदाए का कलाम मुझे दीवाना ज़बन नासिर की नस्ल का एक हिस्सा मैंने दिया। यह एक मतलब ये खुदाए का जैसे मजबूर दुआओं के नाम आ गया वो आप कर रहे हैं। और जो कुछ कह रहा था किताब के हवाले से, अफसानों के हवाले से, मैंने उससे आप उससे मैंने कह दिया। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। इसी में
हमें मैंने दीवाना से। अब चूंकि ये कुरैश का हमारे नाम निकला तो अर्ज करते आसान का ये पहला अभी मजमुआ जो 5% की रियासत में मुश्तमिल और ये अफसाने उर्दू दुनिया के 72 अरबी रसायल ड्राइव में शामिल हैं। हर चंद की तख्लीकी अमल शोर पैदा होते ही हम निकाब हो गया, लेकिन उसे तकलीफ के आकार में मुशक्कल होने और मुरस्से तस्वीर पर आने में बरसों लग गए, क्योंकि ये दरुन ज़ात मतलब नहीं हजार महरूमियों के अलावा कीड़े नीम कश खलिश भी मारते वो खलिश जो बतदरीस जहाँ गजीर की वसूल की और वहशत व शौरीकी के सवा दिल के खानों में रूबा फरोग रहती है और फिर अपना दौरान मुकम्मल होने पर अफसानों की सूरत तंगराए ख्याल से बाहर आती है। सो ये कर्म करामत ये बारे अमानत हासिली की हैसियत जो अफसानों की शक्ल आप लोगों के सामने है वो कुछ अंदरी में गुलशन आफरीदा के मसाले की नीम शर्त में चलने का मासर ये ज़ात के आदर कदे में सोज़े दरुन को आँच देने और जहान गुजरान में अनफसो आफात के अरसानी पर खोलने और शबो रोज़ लहू होने और लहू करने का नतीजा है। इन अफसानों में कन्हाए गिरामाया है या नहीं, शौक़े आवाज़ की तशवीक का सामान है या नहीं, यह आपका सवाल है। मैंने तो अपने तौर पर शदीद तरीन ज़हनी फिशार आपके सामने रख दिया है। यह भी मुमकिन है कि इसमें आपके लिए नया कुछ ना हो, मुमकिन है कि पढ़ने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे तो वही आज़ाद बात की दोहराई हुई आत्महत्या की कहानियाँ हैं, सब कुछ पुराना ही नहीं, बहुत ही पुराना है। यानी कि हमारा खुदा भी वही है, इब्लीस भी वही है, खैर और शर की जंग भी वही है। अज़ली मुबारज़त जो आग और पानी, खाक और खाकदार के दरमियान चली आ रही वो आज तक जारी है, बदला कुछ नहीं है, इसमें नया अक्सार का भी यही कहना है, बदला कुछ नहीं है, यही रोज का मरना और जीना, यही रोज का मरना और जीना हमारा अफसाना है। अगर आप इससे आ चुके हैं तो अपना मरना और जीना तब्दील करके अफसाना भी नया हो जाए। मैं आप तमाम उनके जाना चाहता हूँ। सामईन, अभी हम हाशिम खान को सुन रहे थे, उन्होंने अपने ज़ाती तासुरात, अपनी कहानी और अपने सामईन के दरमियान का मुकालमा आपसे पेश किया। मैं मोहतरम शाहिद लतीफ़ साहब को आवाज़ देना चाहता हूँ कि वो आएँ और आज के इस जलसे में अपने तासुरात पेश करें और आप सभी हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, बल्कि मेज़बान कहना ज़्यादा मुनासिब है कि शाहिद लतीफ़ तो मैं मुमरा और कौसर का ही मानता हूँ और वो यहाँ से चाहें जहाँ मुंतकिल हो जाएं, लेकिन वो कौसर और मुमरा ही के रहेंगे। और आप आएँ, आपको सुनना चाहते हैं हम सब। शाहिद लतीफ़ के ताल्लुक से वहाँ बोलोगे, यहाँ आओगे। मैं शाहिद के ताल्लुक से अगर कुछ कहना चाहूँ तो ये है कि अपनी शख्सियत को कुछ लोग बनाते हैं, अपनी शख्सियत को कुछ लोग निखारते हैं, लेकिन शाहिद ने न सिर्फ ये कि अपनी शख्सियत को बनाया, न सिर्फ ये कि अपनी शख्सियत को संवारा, बल्कि उससे कहीं आगे बढ़कर अपने आप को मनवा भी दिया। ये मनवाना सबके बस की बात नहीं होती, जो अपने आप को मनवा लेता है उसका नाम शाहिद लतीफ़ होता है। मौजूद सामईन, इस जलसे के सदर मेरे मोहतरम सलाम रज़ाक साहब, मेरे भाई अशर साहब, असलम परवेज साहब, इमरान साहब और दीगर तमाम जो यहाँ पर मेरे छोटे भाई बड़े भाई तशरीफ़ फरमा हैं और इतना बड़ा मजमा, इसमें सब तकरीबन मेरे जानने वाले हैं। मुझे आपके दरमियान आकर इरफान कह रहे हैं लोग देख नहीं पा रहे हैं, जबकि सब मुझे देखे हुए हैं, सब अच्छी तरह जानते हैं। तो खैर
یہ مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اردو لٹریچر فورم نے اتنے اچھے جلسے کا انعقاد کیا. مجھے خوشی اس بات کی بھی ہے کہ میرے چھوٹے بھائی برادر ہاشم خان نے اپنا افسانوی مجموعہ بہت ہی کم وقت میں اردو دنیا کے سامنے پیش کر دیا. مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ یہاں پر اتنے اچھے سامعین موجود ہیں کہ مجھے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان سامعین کے درمیان تو مشاعرہ ہونا چاہیے تھا, کہاں ہم افسانے کی بات کریں. تو یہ جب برائے مذاق میں نہیں بات کہی. اچھے سامعین یقیناً بہت مشکل سے ملتے ہیں. اس گفتگو کے دوران مجھے اس اعتراف میں کوئی تردد نہیں کہ ان تمام حضرات نے کتاب پڑھی ہے, لیکن میں نے کتاب نہیں پڑھی. میں کتاب نہیں پڑھی, اور جب میں کتاب پڑھ لوں گا اس وقت جو ہے وہ کوئی رائے دینا دیانتداری پر مشتمل مبنی ہوگا. میں بغیر کتاب پڑھے بہت ساری باتیں کہہ دینا اور مصنف کی تعریف کر دینا اور افسانوں کے بارے میں کہہ دینا تو اس کو مناسب نہیں ہے. ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ کتاب پڑھی جائے, اس پر غور و خوض کیا جائے اور اس کے بعد میں چنانچہ میں اس سلسلے میں کچھ کہنے سے معذور ہوں. اور غالباً یہ ایک اچھی بات بھی ہے اس لیے کہ یہاں پر جتنے بھی پیشرو مقررین تشریف لائے سب نے ہاشم خان کے افسانوں اور اس کتاب کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کیے. چنانچہ میں مزید کچھ کہوں تو ہو سکتا ہے کہ میں اتنے اچھے طریقے سے نہ کہہ پاؤں اتنے اچھے طریقے سے ان حضرات سے میں دو چار چھ باتیں کچھ الگ سے کرنا چاہتا ہوں. وہ ہرچند کے مجموعی صورتحال ہے معاشرت کی جس پر میں نگاہ ڈالنا چاہوں گا, لیکن اس کا تعلق اردو سے بھی ہے, افسانے سے بھی ہے اور ہاشم خان سے. وہ باتیں ہاشم خان سے مختلف نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اشرف نجمی صاحب جو ہے وہ ابھی انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ شروع سے لے کر ابھی تک موجود ہیں اور کوئی یہاں سے وہاں نہیں گئے. تو اشرف بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب لوگ بالکل اسی طرح جیسے ہم ہاشم خان کی محبت میں ہیں. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہے نا, یہ سب ہاشم خان کی محبت میں ہیں اور مجھے اس بات کی بہت خوشی. لیکن مجھے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی جب آپ سب افسانے کی محبت میں, اس سے بھی زیادہ خوشی اس وقت ہوتی جب آپ اردو کی محبت میں. مسئلہ یہ کہ جو سامعین ہاشم خان کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ کل کسی قاسم خان کے لیے جمع نہیں ہوں گے جو کہ اتنے ہی اچھے افسانے ہیں, اور کل پرسوں جو ہے وہ کوئی شاہد الدین کے لیے جمع نہیں ہوں گے جو اتنے ہی اچھے افسانے لکھتے ہوں گے. تو یہ جو ہے وہ ہمارے سماج کا, ہمارے معاشرے کا ایک عمومی جو ہے وہ رویہ ہے. ہم کو جو ہے وہ اردو کی نسبت سے جوڑنا چاہیے تھا, اردو کے معاملے میں افسانے کی نسبت سے جوڑنا چاہیے تھا اور افسانے کے حوالے سے ہاشم خان تک پہنچنا چاہیے. اب یہ ترتیب اگر بدل گئی ہے تو کیا ہم اس جلسے میں بیٹھ کر اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم ہاشم خان کے تعلق سے جمع ہوئے لیکن اس حوالے سے ہم افسانے تک پہنچیں گے اور افسانے کے ذریعے اردو تک پہنچیں گے؟ کیا ہم یہ عزم کر سکتے ہیں بیٹھ کر؟ آپ کہیں گے کہ ہم کر رہے ہیں, لیکن میں جانتا ہوں کہ نہیں کر رہے. اگر مان لیجیے کہ ایسا ہوگا تو واپسی پر آپ کی جو ہے وہ ساری میز پر جتنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں سب ختم ہو جائیں گے, لیکن یہ بھی نہیں ہوگا. میرا اکثر جلسوں میں تجربہ, اجرائی جلسوں میں تجربہ یہ رہا ہے, بلکہ میں نے دیر تک رک کر منتظمین سے پوچھا ہے کہ آپ نے اگر 200 کتابیں ڈسپلے کی تھی تو اس میں سے کتنی فروخت ہوئی؟ پتہ چلا کہ اس میں سے صرف 5 کاپیاں فروخت. یہ آپ لوگوں پر کوئی تنقید نہیں ہے, یہ سماج کے عمومی رویے پر بتا ہے. اور یہی رویے کو جب آپ آگے تک لے کر جائیں گے تو پھر افسانہ بھی سامنے آئے گا کہ صاحب ہم جو ہے وہ, میں ہاشم کا افسانہ اس لیے پڑھوں گا کہ مجھے ہاشم میرے دوست ہیں, ہاشم میرے چھوٹے بھائی, لیکن میں افسانہ اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ افسانہ مجھے پڑھنا چاہیے, افسانہ میری ضرورت ہے. آج جو ہے وہ
मुझे ये कहने के लिए माफ फरमाइए कि अफसाना हम में से किसी की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे किताब हम लोगों की जरूरत नहीं है। आज के दौर में किताब पढ़ने वाले मादूद चंद, अफसाना पढ़ने वाले भी मादूद चंद। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, शायद कि हम अपने आप से भी कभी नहीं पूछते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या किताब जो है वो गैर रहम हो गई है? गैर रहम हो गई है तो उसका ऐलान कर देना चाहिए कि किताब गैर रहम हो गई। क्या किताब तज़किया औकात है? अगर ऐसा है तो आइए हम जुर्रत का मुजाहरा करें और ऐलान कर दें कि किताब गैर रहम हो गई है। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि किताब में सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं है तो भी ऐलान करें, लेकिन न तो हम ऐलान करते हैं और न ही जो है वो किताब को सीने से लगाते हैं, अदब को सीने से लगाते हैं और अफसाने को सीने से। शायरी चूंकि कहीं ना कहीं हमको लुत्फानंदोज करती है, इसलिए हम शायरी के दीवाने और मुशायरों में 5,00,000 का भी मजमू होता है, 10,000 का मजमू, उससे ज्यादा। तो इस हवाले से यहाँ पर बैठकर हमने जो कुछ भी बातें सुनी है उसमें हमको ये सोचना चाहिए कि हम हैं कहाँ पर। ये यहाँ पर अफसाने की बात हो रही थी, किरदार की बात हो रही थी। मैंने इससे पहले भी कई मरतबा कहा है कि साहब माशरा तो अपना किरदार खो रहा है, अफराद अपने किरदार खो रहे हैं, तो हम किरदार को समझ कर भी क्या करें। अब देखिए कि इस माशरे में मैं हूँ लेकिन मैं नहीं हूँ। माशरे में मैं हूँ इसलिए कि मैं जीता जागता इंसान हूँ, आपके सामने चल के रहा हूँ, आप भी तौसीफ करेंगे, इस बात का इतराफ करेंगे हाँ मैं हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं हूँ कि मुझे जैसा होना चाहिए था वैसा मैं हूँ नहीं। मैं समाज में कोई तब्दीली नहीं पैदा कर रहा, मैं माशरे में कोई जो है कोई इस्लाह नहीं कर पा रहा, या माशरे से कुछ मैं सीख नहीं, तो मुझे जो होना चाहिए था मैं वो नहीं रह गया हूँ। चुनांचे मेरा जो किरदार है वो खत्म हो गया, और ऐसे बहुत सारे लोगों का किरदार खत्म हो गया। अब आप जो है वो देखिए, आपसे 30 बरस पहले 40 बरस पहले जनाब अली हुजूर तो अब से 20 साल पहले 30 साल पहले एक हमारे दरमियान आप तसव्वुर करेंगे कि एक खातून थी मोहल्ले में जो बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाती थी या जो रिश्ते लगाती थी, जिसको मुशाहदा कहा जाता था। और उस खातून की ये बात थी कि बच्चों को दुआएं याद कराती थी, कुछ पुराने वाकयात सुनाती थी, किस्से सुनाती थी, और उसकी कोशिश ये होती थी कि बच्चा जो है वो अखलाकी तौर पर कुछ सीख जाए, उसमें अदब आ जाए, उसमें तहजीब आए। अब वो किरदार आप ढूंढिए अपने मोहल्ले में और किसी भी मोहल्ले में, आपको वो किरदार नजर आता है? नहीं आता। इसी तरह से मैं अपने बचपन को याद करता हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं चलते फिरते जब हम नमाज को जा रहे होते तो किसी को सलाम करें तो बुजुर्ग जो है वो जवाब भी देते थे और सर पर आते थे। अजहर इनायती का शेर है कि रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब के कहते थे कि जीते रहे। तो साहब माशरे में जीते रहिए कहने वाला किरदार खत्म हो गया और हमको उसका इल्म ही नहीं, हमको उसको खबर ही नहीं रही कि वो किरदार चला गया हमारे पास। तो ऐसे कितने किरदार हमारे दरमियान थे, कल तक थे, जो मरहूम हो चुके। हमने न उन पर फातिहा पढ़ी, न उनके इसाले सवाब के लिए कुछ करते हैं, न उन जैसा पैदा करने की कोशिश। और यही वजह है कि हम जो है वो कहानियों से दूर हो गए। अब घरों में नानी दादियां भी कहानियां नहीं सुनाती। भाई कहानी क्यों नहीं सुनाई जाती? कहानियों में अखलाकी पहलू हुआ करता था, उसमें दर्द हुआ करता था, उसमें इबरत हुआ करता था। और जिन बच्चों ने ये कहानी पढ़ी अब्दुल कादिर जिलानी की कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने अपनी जिंदगी में कोशिश की कि झूठ नहीं, और जब वो ऐसा मौका आया कि झूठ बोलना है तो उनके ज़मीर ने उनको टोका, पकड़ा कि साहब तुम क्या कर रहे हो। ये सूरत हाल हुआ करती। अब वो कहानियां सुनाई नहीं जा रही, कहानियां सुनाने वाले लोग नहीं है। तो हम जो है वो कहानियां पढ़ने के बारे में कह रहे, जिस बच्चे ने कहानी बचपन में नहीं सुनी उसने जो है वो छोटी छोटी कहानियां अखलाकी और यानी इबरत अंगेज कहानियां नहीं पढ़ी बचपन में, वो अपने आप को आज के अदब से रिलेट ही नहीं कर पाए, वो अपना कनेक्शन ही नहीं बना पाएगा कि साहब ये अदब है और मुझे पढ़ना चाहिए। अब मैं जो है वो अक्सर सलाम भाई से भी गुफ्तगू करता हूँ, अफसाने पर असलम परवेज साहब से भी बात करता हूँ, इसलिए कि जितनी शायरी में पढ़ता हूँ उससे ज्यादा अफसाने पढ़ता हूँ। और बहुत सारी जगहों पर अफसाना पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि साहब किताब बंद करके मैं उसमें खो जाता हूँ। और फिर जब खो चुका होता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि साहब इस तरह मेरी तरह खो जाने वाले कितने लोग होंगे,
इस उर्दू दुनिया में। तो पता चला कि नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो मतलब जमालियाती एहसास की परवरिश नहीं हो पा रही। बहुत सारी चीजें जो छूट रही हैं उसमें ये भी है कि जमालियाती एहसास की परवरिश नहीं हो पा रही है, और बच्चा जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, वो खुश होना सीख लेता है, हंस उठाना नहीं सीखता, किस तरह किसी चीज पर मजबूर हुआ जाता है, किस तरह किसी चीज को अंगेज किया जाता है, किस तरह सरशारी की कैफियत पैदा होती है, कि आज का बच्चा नहीं जानता। और यही वजह है कि वो जो है वो मसनूई चीजों में खुशियां तलाश करता है। वो आउटिंग पे जाएगा, वो तफरीह पे जाएगा, वो किसी झरने पर जाएगा, है ना, लौट कर आएगा और फिर 20 दिन के बाद, महीने भर के बाद में कहेगा कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, बाहर। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो आज की दुनिया में आ रहा है, और अब बच्चे भी कहने लगे कि हम फ्रस्ट्रेट हो गए, ये फ्रस्ट्रेशन तो हमारी जिंदगी में कभी नहीं आया। इसलिए कि जरा सा तबीयत में जो है वो थोड़ी सी बेचैनी पैदा हुई, कोई शेर कोई गजल गुनगुना ली, कोई शेर पढ़ लिया, कोई किताब अच्छी सी उठा ली, 2 बरख 4 बरख 10 बरख पढ़ लिए, तबीयत में एक कैफियत, एक सरशारी आ गई। तो ये नहीं, हम लोग इतनी अच्छी महफिल में बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ बहुत अदब के साथ आपसे दरखास्त करता हूँ कि इन बातों पे गौर कीजिए। गौर करने के बाद में इस पर जो है वो कुछ हरकत कीजिए कि हम अपने आसपास के लोगों को समझाएं, उनको इस तरफ राग़िब करें, अपने एक्सटेंडेड जो फैमिली होती है उसके लोगों को बुलाएं, बिठाएं, समझाएं। बच्चों को देखिए बहुत सारी तफरीयात घर में होती है, बर्थडे पार्टी होती है, लेकिन कोई भी बुजुर्ग जो है वो सारे बच्चों को जमा करके उनसे बहुत सारी बातें नहीं करता। आज के समय बच्चा जो है बड़ा जो है वो उनके सामने बच्चा हो जाता है और अपने बड़ापन को खो देता है। ये एक जमाने में बहुत अच्छी बात हुआ करती थी कि बड़ा बच्चों के साथ मिलकर बच्चा हो जाए, लेकिन अब जो है बहुत जरूरत है कि बड़े को बड़े जैसा पेश आए। तो ये इस तरह से मतलब अगर होगा तो हम अपने अंदर जो किरदार होना चाहिए था उसको शायद तलाश कर पाए, माशरे को कुछ दे सके, और जब माशरे को कुछ दे पाएंगे तो माशरा जो है वो ज़बान की भी कद्र करेगा, अदब की भी कद्र करेगा, अफसानों की भी कद्र करेगा, और अपने उस अफसाना निगार तक पहुंचेगा जिस तक उसको पहुंचना चाहिए, जिसकी उसको कद्र। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा खुदा के कुत्ते का मोहतरम सलाम बिन रज़ाक साहब। मेहमान गिरामी, शायद दीन अदब, ख़वातीन हज़रात, मैं सबसे पहले उर्दू लिखने का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस जलसे की सिफारत। सामईन किराम, आज साफियत, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, साइंस की टेक्नोलॉजी और अदब और आर्ट को मजबूत करेगा, बल्कि खा चुका है। हम घरों में देखते हैं, मेरे एक दोस्त थे, अजीब थे वो, उन्होंने एक नया घर और घर बनाने की दावत दी। जब हम घर गए उसकी दावत तो बहुत शानदार घर था, बहुत अच्छा घर था, और दावत भी उन्होंने अच्छी शानदार की। लेकिन जब रुखसत होने लगे तो मैंने उनसे कहा घर तो बहुत अच्छी, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है। मैंने कहा क्या? उसके साथ क्या? तो मैंने कहा किताबों की शेल्फ। मेरे घर में किताबों की शेल्फ नहीं है, हर चीज़ है, किताबें। जैसे शाहिद साहब ने भी कहा कि जब तक किताबों से मोहब्बत नहीं हो, जब तक किताबों से हम लगाव नहीं कायम करें, याद रखिए माशरा कभी सुधर नहीं। माशरा दिन ब दिन
जवाब पजीर होकर किताबें जो हैं वो हमारे अखलाक को, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती हैं और बहुत हमें रहनुमाई करती हैं। हमारे घर में टीवी रहता है, बुक्स, डीजे शौकीन जो है, डीजे के शौकीन बच्चे डीजे रखते हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल हर बच्चे के हाथ में होता है, नहीं होती तो किताबें। आज से 40-50 बरस पहले अदब एक मुसलमा हकीकत हो गया। हमारे घरों में, हमारी महफिलों और उन नामों से हम इस तरीके से वाकिफ थे जैसे अपने घर के अफराद से, जैसे अपने रिश्तेदारों से वाकिफ। हम शायरों का जिक्र करते थे, शायर विद्यार्थी का जिक्र होता था, उनके अशार सुना दे जाते, फैज का जिक्र होता था, इस चंद्र के अफसाने पढ़ के अफसानों का जिक्र होता था, अफसानों के ऊपर गुफ्तगू होती थी, ये सब होता था। लेकिन अब हमारे नौजवान जो है किस पे गुफ्तगू करते हैं? अभी 4 नौजवानों को आपने देखा नहीं तो गुफ्तगू करते हुए, वो गुफ्तगू करते हैं फिल्मों के अदाकारों पर, वो गुफ्तगू करते हैं क्रिकेट के खिलाड़ियों पर, वो गुफ्तगू करते हैं भांडों पर और रक्कासाओं पर और संगीत पर, और इस कदर भूमि गुफ्तगू होती है कि आप गुफ्तगू सुन लेंगे, आपके कान जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त महसूस करें। साइंस की टेक्नोलॉजी ने इस कदर हमारे जॉब को पामाल किया कि जिसकी कोई इंतहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ मैं हो भी नहीं सकती कि 20वीं सदी 21वीं सदी में रहते हुए आप टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं रहते। टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, लेकिन असल बात यह है कि टेक्नोलॉजी से जो चीज़ें बराबर हो रही हैं, जो चीज़ें कायम हो रही हैं, उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करने की वजह कुछ चीज़ें हमको इस्तेमाल करते हैं, नुकसान करते हैं। ये सबसे बड़ी बात। और याद रखिए, ये जब तक इस चीज़ के लिए हम तैयार नहीं होंगे और इसके तदारुक के लिए तैयार नहीं होंगे तो ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी। और खुद हम अपने घरों में देखें, हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ में क्या शुरू करते हैं, कि हमारे बच्चे जो है क्या करते हैं, मोबाइल हर एक बच्चे के हाथ में होता है और बच्चे जो है जिद करते हैं कि मोबाइल, अच्छा उनकी पढ़ाई नुकसान होती है, पढ़ाई का नुकसान होता है। जब उसे गुफ्तगू करते हैं तो वो मोबाइल की बात करेंगे और फिजूल बातें होंगी, तो ये मोबाइल के अंदर जो है वो सब, मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई शक, लेकिन मोबाइल के अंदर खुराफात भी तो बहुत है। अब बच्चों की तवज्जो खुराफात की तरफ ज़्यादा जाती है, अच्छी बात की तरफ कम जाती है। पाकिस्तान के अदीब थे जमील जालवी, उनका इंतकाल हो गया 4 बरस पहले। उन्होंने एक मजमून लिखा था, साइंस और टेक्नोलॉजी और अदब, शायरी, साइंस, टेक्नोलॉजी और शायरी, ये मजमून था। तो उन्होंने ये बताया था कि टेक्नोलॉजी इस कदर बढ़ गई है कि क्लोनिंग के जरिए से आगे चलकर ऐसे कुत्ते बनाए जाएंगे जो मुर्ग की तरह काम दें, और ऐसे मुर्ग बनाए जाएंगे जो कुत्तों की तरह भौंके। यानी उन्होंने इशारा कर दिया था कि इंसान जो है वो इंसान का दुश्मन होता जा रहा है, और जब कुत्तों की और मुर्गों की हालत होती तो इंसान को जानवर बनाने में क्या देगा। और इसका इम्कान हैं, हम देखते हैं, साइंस के अखबारों में पढ़ते रहते हैं, टीवी पर भी देखते रहते हैं, हमें मालूम है कि आगे चलकर क्या होगा दुनिया में। तो उन्होंने जब ये बात लिखी और ये कहा कि साइंस
टेक्नोलॉजी के जरिए से, साइंस के जरिए से हम रॉकेट में बैठकर शायरी नहीं करते। जब कहा उन्होंने लिखा कि रॉकेट में बैठकर शायरी नहीं कर सकते, तो उसी वक्त मुझे एक बात याद आई, मेरा चयन करता हूँ। बात वो थी कि जब राकेश शर्मा रॉकेट में बैठकर जा रहा था, तो इंदिरा गांधी ने उस जमाने की जो वज़ीर आज़म थी, उन्होंने कहा था कि तुमको यहाँ से हमारा मुल्क कैसे, हिंदुस्तान कैसे नजर आया? तो उसने शायरी में जवाब दिया था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। इसका मतलब ये हुआ कि शायरी रॉकेट में बैठकर भी हो जाती है। शायरी जो है वो कभी मरेगी नहीं, खत्म नहीं होगी, अदब कभी खत्म नहीं होगी। भले आप इस वक्त अदब सवाल पसीर है, अदब की तरफ लोगों की तवज्जो कम है, लेकिन अदब कभी खत्म नहीं होगी। टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ जाए, कितनी भी ताकतवर हो जाए, लेकिन वो कभी लफ्ज़ों के आगे लफ्ज़ की हुर्मत को खत्म नहीं कर सकते। लफ्ज़ जो है वो हमारे जहनों में तस्वुर के चराग जला। देखिए, हम फिल्में देखते हैं और टीवी देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, लुत्फ लेते हैं, सही, लेकिन किताब पढ़ने का जो लुत्फ है वो अलग है। उसकी मिसाल यूँ है कि फिल्म जो है वो इंसान के तस्वुर को महसूस करता है, और इंसान और किताब जो है, लफ्ज़ जो है, वो इंसान की अक्ल को उसवत है। जैसे मिसाल के तौर पर कहें कि लफ्ज़ मेला अगर हम ज़बानी बोलें, जैसे मैं कहूँ मेला, तो मेला जैसे ही कहेंगे तो आपके जहन में मेले के कई मनाजिर पड़े, कई चीज़ें आपके जहन में आते हैं। बच्चे झूला झूल रहे हैं, दुकानें सजी हुई हैं, औरतें जो है वो जवाब खरीद रही हैं, पुतले चल रही हैं, वगैरह वगैरह, जो मेले में हो सकता है वो सब आपको जहन में। और उसको अगर फर्ज कीजिए कि शूट करना चाहें तो कितने घंटे लगेंगे उस पूरे मेले को शूट करने। लेकिन एक लफ्ज़ ने जब मेला सुना आपने, तो मेला सुनते ही आपके जहन के अंदर सब चीज़ें आ गई, लेकिन शूट करने से, इन्हें शूट करने से मेले की पूरी तस्वीर नहीं आ समानी। इसी तरीके से जैसे शाहरुख खान, अशोका में शाहरुख खान ने काम किया था, रज़िया सुल्तान में इमाम अली ने काम किया था। अब हुआ ये है कि जब भी अशोक का जिक्र आता है तो हमारे सामने अशोका जब जिक्र आता है तो शाहरुख खान आता है, और जब रज़िया सुल्तान का जिक्र आता है तो हमारे सामने इमाम अली खड़े हो जाते हैं। हम असल चीज़ को भूल गए, कि भूल जाते, भुला दिए, और नकली चीज़ें हमारे सामने। तो ये टेक्नोलॉजी की खराबी भी है और अच्छा है। अच्छाई के पहलू दूसरे हैं, खराबी के पहलू सामने। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि हमको जब तक अदब से लगाव नहीं पैदा होगा, हमारा भाषा जवान पजीर होता चला जाएगा। लिहाजा अदब से लगाव पैदा करना जरूरी है। आज अदब के ताल्लुक से बहुत सी बातें हुई, किताब का अजरा हुआ, कहानियों से पढ़े, हमारे हाशिम खान साहब को अजरा भी किया गया। इन कहानियों के ताल्लुक से मैं जो कहना है, ये हाशिम खान साहब ने बड़ी मोहब्बत से मुझे किताब पेश की। मैंने हाशिम खान साहब की कोई अफसाना नहीं पढ़ा, इससे पढ़ा, नाम जरूर सुना था लेकिन नहीं पढ़ा। तो जब मेरे घर पर आए, वो उनसे गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैंने आपके अफसाना अब तक नहीं पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ेंगे कैसे, कभी आप अफसाना छपा ही नहीं मेरा हिंदुस्तान में, अफसाने जो एक छपे कहीं, लेकिन मेरे ज़्यादातर अफसाने पाकिस्तान में। मैंने उसकी वजह, तो उन्होंने बताया कि वजह यह है कि मैं रिसालों के अंदर, रिसालों जो रिसाले हमारे निकलते हैं, उन रिसालों का बयान बहुत घटिया होता है, उन घटिया रिसालों में वो छपा नहीं दुरुस्त बात है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से हम सोचें तो
कोई चीज़ छप ही नहीं सकती। रिसालों में घटियापन है, लेकिन रिसालों को अगर हम देख और हमारी चीज़ें छपती चले छपे तो ज़ाहिर है रिसालों का माया भी बढ़ेगा। अगर वो नहीं छापते ये उनकी कमजोरी है या उनकी कमी है उनमें, इसलिए नहीं छाप रहा। तो ये बात तो मैं वो एक अलग बैठ हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि उनके अफसाने जो हैं जब मैंने पढ़े तो यकीनन बहुत शानदार अफसाने हैं, बहुत खूबसूरत अफसाने हैं और बहुत ही अलग अफसाने। इन अफसानों का जो रवानी है, अफसाने जो रवानी लिखे जाते हैं उनसे अलग हटकर अफसाने मौजू के अतबार से तो खैर मौजू तो हर एक का एक होता है, बहुत क्योंकि मौजूद जो है एक होते हैं, लेकिन असल चीज़ होती है ट्रीटमेंट, उसकी उसलूब, उसका उसलूब और ज़बान, ये चीज़ें होती हैं और यही चीज़ें मौजूद हैं। उनकी कहानियों में सरोजनी और फिरदौस अज़ीम, सरोजनी और दीवान का गम क्यों, दीवान का गम क्यों, और अल्लाह अल्लाह भी लल्ला लल्ला लल्ला, ये कहानियों से पढ़ी, ये कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं और उसमें अल्लाह लल्ला लोली और सरोजनी मुझे बहुत पसंद। सरोजनी जो है एक लव स्टोरी है, एक लव स्टोरी, आम लव स्टोरी। अगर हम उसको आम लफ्ज़ों में बयान करेंगे तो ये है कि एक गरीब व्यक्ति है, कमाए नहीं जाती और एक ऊंचे आला खानदान का लड़का है, उससे उसकी मोहब्बत हो जाती है, बचपन के साथ पहले वो मोहब्बत हो जाती है। और बाप, लड़के का बाप जो है जब बड़ा हो जाता है तालीम के लिए उसे बाहर भेज देता है, बाहर से जब वह लौट कर आता है तो शादी करना चाहता है। बाप कहता है कि तुझसे शादी कैसे कर सकते, वो तो हमारे घर की नौकरानी है और नौकरानी से तू शादी करेगा तो हमारे खानदान में इज्जत क्या देगा। खैर ये बात तो होती है, लेकिन बाप का माल तो ये है कि बाप जो है बेटी से, उसकी बेटी से तो वो लड़की से शादी करने के लिए मना करता है, लेकिन उसकी माँ से उसका ताल्लुक आता है और गालिबा इसी ख्याल से शादी से मना भी किया उसको। और मगर उस कहानी के अंदर कहानी है, लेकिन इस कहानी को पेश करने का अंदाज जो है, जो जबान इस्तेमाल कर वो कमाल है। और उन्होंने उनकी पूरी अफसानों की जबान जो है एक ही, सबों ने कहा कि जबान की आला जबान है, इसको कितनी जबान लिखते हो और बहुत ज़्यादा अपने अपने अल्फाज में अपने अपने मैं भी करूँगा, मैं भी समझ रहा हूँ कि जबान बहुत अच्छी। लेकिन एक बात जो एक अफसाने निगार जैसे समय महसूस करता हूँ ये है कि अफसाने की ज़बान और शायरी की ज़बान में फर्क पड़ा। इनके अफसानों की ज़बान जो है इसमें शायरी, ये शायरी की ज़बान, शायरी की ज़बान में इन्होंने, ऐसा नहीं है कि सभी अफसाने हैं, लेकिन कहीं कहीं उनकी शायरी अभी हो गई है अफसाने, उनका उसलूब शायराना उसलूब जो है वो अफसानों पर आ गया और ये नहीं होना। जैसे मिसाल के तौर पर उनका कुछ अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए अफसानों में, वो बता रहा हूँ। मैंने भी शिकस्ता ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सुरूर बरनाई चश्म तीर खुर्दा बाजार कर्म के नीमजा दरुन शब तेरा, ये अल्फाज जो है यकीनन उर्दू के अल्फाज हैं, बहुत अच्छे अल्फाज हैं। ये शायरी का ये तरकीब सब शायरी, ये शायरी में ज़ेब दे, अफसाने में नहीं दे। अफसाने में इस तरीके से जैसे अफसाने की जबान तो ऐसे होनी चाहिए कि साइकिल चला रहा हो कोई खड़ा, साइकिल चला रहा हो आराम से चला रहा हो, जबान इस तरीके से होनी चाहिए, रवान रवान। लेकिन इन अल्फाज के होते हुए
ऐसा लगता है कि सांसें चलती है, चल रही है कवाली के साथ और नीचे करोड़ा और झटका लगता है, तो झटका नहीं लग रहा है। एक तो ये चीज और एक खामी है मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से खामी कह रहा हूँ, कोई खामी नहीं, लेकिन अफसाने के अंदर जो ज़बान इस्तेमाल की, इसके अलावा इन अल्फाज के अलावा जो ज़बान इस्तेमाल वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही आला दर्जे है। ऐसी ज़बान बहुत कम इस्तेमाल कर सकते हैं, लोग करते हैं और कर नहीं सकते। ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना आसान नहीं होता, हर एक मुमकिन भी नहीं। उनके जो जुमले को बता रहा हूँ, देखिए उनके उसलूब की खूबियाँ जो है, जिसमें इस्तिआरे हैं, उसमें तशबीहात हैं और उसमें जो बातें जो हैं वो कितनी खूबसूरत बात है। ये देखिए, तुम्हारी ख्वाहिशों की तितली के पर नोच कर फेंक दिए गए हैं, इसलिए तुम बाकी हैं। ये जुमला है, तुम्हारी ख्वाहिशों की तितली के पर नोच कर फेंक दिए गए हैं, इसलिए तुम बाकी हो गए। जिंदगी अपने फिक्री अनासिर में खुद जीने का एक मुकम्मल जवाब है। जिंदगी खा तुम्हारी हो या किसी रंडी। ये जुमले जो है, ये माने से भरपूर जुमले हैं। इनमें इनके माने को तलाश करने की जरूरत है और इन मानों को खोजने की जरूरत है, तब जाकर हमको पता चलेगा कि अफसाने के अंदर, इन अफसानों के अंदर क्या है। इन्होंने कई लफ्ज़ों का भी इस्तेमाल थोड़ा सा दूसरी ज़बान का इस्तेमाल किया, जिसके दूसरी ज़बान का इस्तेमाल करने गलत नहीं, उर्दू तो तमाम ज़बानों से मिलकर बनी है, उसकी ज़बानें शामिल हैं, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर लफ्ज़ों का इस्तेमाल जो है ना बहुत नागवार होता है। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने कहीं ओपिनियन इस्तेमाल, अंग्रेजी का लफ्ज़ है ओपिनियन, राय, मशवरा, और एक जगह हिंदी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया विडम्बना। हालांकि मैंने देखा कि उनको क्या जरूरत थी विडम्बना इस्तेमाल करने, हाँ ओपिनियन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी, बहुत आसानी से उनके अल्फाज मिल जाते वहाँ पर, लेकिन उन्होंने किया। वो क्यों किया वो खुद बता। मैंने बहरहाल मैं उनकी मुबारकबाद देता हूँ और नेक ख्वाहिशात के साथ में मैं दुआ करूँगा कि वो आगे चलकर ऐसा न समझे कि रसाले जो है अफसाने नहीं छापते, उनके अफसानों को रिसाले छापते भी या रिसाले कबूल नहीं करते, तो समझिए कि वो रिसाले नाकारा हैं जो ऐसे अफसानों को कबूल नहीं करते। वो रिसाले जो है वो कमतर हैं जो ऐसे खूबसूरत अफसानों को कबूल नहीं करते। लिहाजा अपने दिल से वो बातें निकाल कर एक खुले दिल से वो लिखें और दिल में किसी किस्म की कजी न रखें, किसी किस्म की ऐसी बात न रखें कि मेरे अफसाने नहीं आपको चाहने वाले देखें कितने लोग हैं, कितने लोग चाह रहे हैं, और आपकी किताब छपेगी और ये किताब छपी है, ये किताब जब लोग पढ़ेंगे तो कितने लोग चाहें, तो किताबें छपती रहेंगी और अफसाने आपके लिखने चाहिए और आप लिखते रहिए। यही हमारी ख्वाहिश है और इसी ख्वाहिश के साथ आपकी बात करता हूँ। इस महफिल में मौजूद तमाम मेहमानान का, साहिब किताब का, सामाईन गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है और गुजारिश है कि इशाइया के बाद इस महफिल का अख्तिताम कर दिया जाएगा। शुक्रिया आपका और आपके आ जाने का, यानी हम खाक नशीनों में चले आने का। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए।